Hello everyone, welcome to GLN online class. Today we will discuss rest work of lesson 8. A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onward. This process was strengthened with establishment of the Delhi Sultanate when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. The Chishti Silsila was among the most influential orders. It had a long line of teachers like Khwaja Muinuddin Chishti of Ajmer, Kutubuddin Bakhtiyar Kaki of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Aulia of Delhi and Ban Darwaja Gisaur Daraj of गुलबार. इट मीन्स 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी ज़्यादा मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए. चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली रहा. इसमें औलिये जो थे उनकी भी एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसोद्राज प्रमुख थे. नेक्स्ट आता है द सूफीज मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानका और hospices. Devotees of all description including members of the royalty and nobility and ordinary people flocked to these khankas. They discuss spiritual matters, sought the blessing of the sun and in solving their worldly problems or simply attended the music and dances. क्या होता था कि सूफी जो संत थे ना अपने खानकाहों में विशेष जो कि बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घराने के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन जगहों को क्या कहते थे, इन खानकाहों में आते थे. वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसे भी इसमें शामिल होते थे. फिर आता है कि often people attributed Sufis master with miraculous powers that could release others of their illness and troubles. The tomb or dargah of a Sufi saint became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths flocked. क्या होता था कि अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी जो हैं औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिससे आम लोगों की बीमारी तकलीफ उनसे छुटकारा मिल सकता है, और सूफी संत की जो दरगाह थी वो एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे. नेक्स्ट आता है फाइंडिंग द लॉर्ड, भाई भगवान प्रभु की खोज. जलाउद्दीन रूमी was a great 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian. Here is an excerpt from his work. अब जो जलाउद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था, वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की. उसकी जो काव्य रचना थी ना, उसका एक उदाहरण इस तरह से: He was not on the cross of the Christian. I went to Hindu temples. In none of them was there any sign. He was not on the heights or in lowlands. I went to Kaaba of Makkah. He was not there. I asked about him from Avinka the philosopher. He was beyond the range of Avinka. Looked into my heart in that his place. I saw him. He was in no other place. अब वो बताता है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था. मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था.
न तो यह ऊंचाइयों में मिला न खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा में भी गया, वह वहां भी नहीं मिला मुझे। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से भी परे था। मैंने अपने दिल में झांका कि यही उसकी जगह थी। मैंने वहीं और उसे पाया और मुझे भगवान कहीं भी नहीं मिले। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। द पीरियड आफ्टर द 13th century saw a new way of bhakti movement in North India. This was an age when Islam, Brahmanicals, Hinduism, Sufism, various strands of bhakti and Nagpanth, Siddhs and yogis influenced one another. We saw that new towns and kingdoms were emerging and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. Such people, especially craftspersons, peasants, traders and laborers, thronged to listen to these new saints and spread their ideas. भी उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हुए थे किस तरह से हुए? 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए जो नगर थे और राज्यों की स्टार्टिंग हो गई और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर ये इसका प्रचार करते थे। Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religions. Others like Tulsidas and Surdas accepted exacting beliefs and practices but wanted to make these acceptable to all. Tulsidas conceived of God in the form of Rama. Tulsidas' compositions, the Ramcharitmanas, written in Avadhi, a language used in eastern Uttar Pradesh, is important both as an expression of his devotion and as literary work. Surdas was an ardent devotion of Krishna. His composition compiled in the Sursavli and Sahitya Lahari express his devotion. Also contemporary was Sankrat Deva of Assam, who emphasized devotion offered to Vishnu and composed poem and play in Assamese. He began the practice of setting up Namgrah or house of recitations and prayers, a practice that continues to date. उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने अपने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास, कुछ अन्य संतों ने उस समय जो विद्वान विश्वासों पद्धतियों को स्वीकार करते थे उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधि, जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना कौन सी थी? रामचरितमानस। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास, जो कि श्री कृष्ण के भक्त थे, उनकी जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? सुरसावली, साहित्य लहरी ये थी और भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव, जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। नेक्स्ट आता है, दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सेंट लाइक दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई।
Mirabai was a Rajput princess married into the royal family of Mewar. In 16th century, Mirabai became a disciple of Ravidas, a sant from caste considered untouchable. She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. Her song also opening challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses of राजस्थान एंड गुजरात। अब इसी परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसकी शादी 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजशाही घराने में हो गई। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति से माने जाते थे उनकी शिष्या बन गई और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया और उनके जो गीत थे वो उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत जो है राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में काफी प्रसिद्ध हुए। A unique feature of most of the songs is that their work were composed in regional language and could be sung. They become immensely popular and were handed down orally from generation to generation. Usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experience. Thus the song as we have then today are as much a creation of the sun as of generations of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. अब इन संतों में से अधिकांश का जो है विशिष्ट अभिलक्षण क्या था कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी जिन्हें वो लोग आसानी से गा सकते थे, इसलिए बेहद ही लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। और इस तरह के जो गीतों का प्रसारण जो होता था ना वो सर्वाधिक निर्धन और वंचित जो समुदाय की महिलाएं थी उनकी काफ़ी भूमिका रहती थी और प्रसारण की ये जो प्रक्रिया थी ये सभी लोगों को अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। और इस तरह आज मिलने वाले जो गीत हैं संतों की रचनाएं तो हैं पर साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती इस जन संस्कृति का अंग बन गए थे। नेक्स्ट आता है बियॉन्ड द रानाज पैलेस, भी राणा के राजमहल से परे। दिस इज सॉन्ग कंपोज्ड बाय मीराबाई, और ये जो मीराबाई द्वारा रचा गया गीत। राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम एंड फास्ट टिक्का ऑफ प्रिंसली लाइफ, आई हैव लेफ्ट योर टाउन एंड येट राणा व्हाई हैव यू केप्ट अप enmity against me? Rana, you gave me a cup of poison. I drank it lying. Rana, I will not be destroyed by you. And yet, Rana, why have you kept up enmity against me? Why do you think Mirabai left the Rana's palace? भाई क्या आता है, लोग लाज कुलरा और मर्जाद जग माँ जेक खा ना राख्यो री महल अटारी अब सब त्यागो थारो बसनो शहर। राणा जी थे खायो राख्यो महासो बैर बिख रो प्यालो, राणा जी भेजो पीवा मीरा हासारी। बार ने बाको भयो गरल अमृत जयो पियो, राणा थे क्यानो राख्यो महासो बैर। भाई राणा सांगा ने जो उसको जहर का प्याला दिया उसको पीने के बाद भी मीराबाई को कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से मीराबाई के द्वारा जो लिखा गया गीत था वो यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि आपके विचार में जो मीराबाई ने राणा का जो राजमहल था उसे क्यों छोड़ा। डियर स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट वर्क ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।